قدیم زمانے کی ایک بستی جس کا پہاڑوں کے درمیان میں بسیرا تھا، جہاں زندگی سادہ مگر مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ دھرتی پر زراعت کا آغاز ہو چکا تھا، مگر زیادہ تر لوگ شکار اور دستکاری پر گزارا کرتے تھے۔ انہی میں ایک عورت تھی، درگا، جو اپنی محنت اور ہنر سے لوگوں کے لباس سیتی اور اپنے بیمار باپ اور چھوٹے بھائی کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کی سلائی اتنی عمدہ تھی کہ قبیلے کے سردار کی بیوی تک اپنے قیمتی لباس اسی سے تیار کرواتی تھی۔ ایک دن جب درگا نے دیکھا کہ سردار کی بیوی کے کپڑے تیار ہو چکے ہیں مگر لینے کوئی نہیں آیا، تو وہ خود ہی ان کے بڑے گھر جا پہنچی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بیمار والد کے لیے جڑی بوٹیوں کا انتظام کرنا ضروری تھا اور مزدوری کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ بڑی حویلی کی سیڑھیوں کے پاس انتظار کرتے ہوئے اسے کافی وقت بیت گیا۔ تبھی سردار کی بیوی زرق برق لباس میں بھاری زیورات پہنے اتری۔ اس نے تیز نظروں سے درگا کو گھورا اور نخوت سے بولی، اتنی دیر لگا دی کپڑے سینے میں؟ درگا نے ادب سے سر جھکا کر کہا، بی میں نے 2 دن پہلے ہی کپڑے مکمل کر دیے تھے، مگر کوئی لینے نہیں آیا تو میں خود لے آئی۔ سردار کی بیوی نے ہونٹ بھینچ لیے اور کپڑے کھول کر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر نرمی آئی۔ سلائی اچھی کی ہے، مگر دیکھنا ہوگا کہ فٹنگ صحیح ہے یا نہیں۔ درگا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے لگا کہ اب محنت کی کمائی مل جائے گی، مگر تبھی اچانک حویلی کے اندر شور مچ گیا۔ لوگ بھاگنے لگے، کچھ کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں، کچھ کے پاس پتھر۔ بیوی بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور چوکیدار کو پکارا۔ کیا ہوا؟ چوکیدار کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، بی ابھی مالی نے باغ میں بہت بڑا اچھا دھاری ناگ دیکھا ہے، وہ ایک درخت کے گرد لپٹا بیٹھا تھا۔ شکر ہے کہ وقت پر دیکھ لیا، اب اسے پکڑ لیں گے۔ یہ سن کر حویلی کے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ درگا بھی پریشان ہو گئی، مگر اسے اپنی مزدوری کی فکر تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، بی میری مزدوری، مجھے والد کی دوا لینی ہے۔ بیوی نے بے نیازی سے ہاتھ جھاڑا، سکینہ کے ہاتھ بھجوا دوں گی، ابھی اور بھی کپڑے سینے ہیں تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہجوم میں شامل ہو گئی۔ درگا کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے نکلی اور محلے کی ایک نیک دل عورت رکمنی سے ادھار مانگنے چلی گئی۔ مگر رکمنی کی ماں نے غصے سے کہا، ہم کوئی خزانہ نہیں رکھتے جو ہر بار ادھار دیں۔ مگر رکمنی نے ترس کھا کر درگا کو کچھ سکے دے دیے۔ درگا نے ممنونیت سے انہیں دیکھا اور جلدی واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے بیمار باپ کے لیے دوا خریدی اور کچھ خوراک بھی لے آئی۔ اس کا چھوٹا بھائی سوریا بھی شکار سے واپس آ گیا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ان کی ماں کا انتقال کب کا ہو چکا تھا اور باپ اب چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ اگر درگا کے ہاتھ میں سلائی کا ہنر نہ ہوتا تو شاید وہ بھوک سے مر جاتے۔ رات کو جب اس نے اپنے باپ کو حویلی میں نظر آنے والے ناگ کے بارے میں بتایا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سختی آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولے، یہ وہی ہے، ایک دن تو اسے لوٹنا ہی تھا، آخر کب تک وہ انتقام لیے بغیر رہ سکتا تھا؟ درگا حیران ہوئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ باپ نے گہری سانس لی اور بولے، اگر انہوں نے اسے مار دیا تو وہ پھر لوٹے گا۔ اچھا دھاری ناگ کبھی نہیں مرتا، 100 سال بعد وہ پھر جنم لیتا ہے۔ درگا ہنس دی، آبا یہ سب صرف کہانیاں ہیں۔ مگر باپ کے چہرے کی سنجیدگی نے اسے الجھا دیا۔ شام ڈھلتے ہی موسم اچانک بگڑ گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سرخ مٹی کے بگولے اٹھنے لگے۔ کچھ ہی دیواریں کانپنے لگیں۔ درگا کو خوف محسوس ہوا۔ اس نے فوراً سوریا کو اندر بلایا اور اپنے باپ کی چارپائی کمرے میں لے آئی۔ رات کافی بیت چکی تھی جب اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ درگا سہم گئی، اس وقت کون آ سکتا تھا؟ اندر سے ہی اس نے آواز لگائی، کون ہے؟ باہر سے بھاری دھکی ہوئی آواز آئی، مسافر ہوں، زخمی حالت میں ہوں، ایک رات کی پناہ چاہیے۔ درگا جانتی تھی کہ ان کا گاؤں مسافروں کے لیے پناہ گاہ تھا، مگر اس وقت کسی اجنبی کو اندر بلانا صحیح ہوگا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ گہری سبز آنکھیں، چمکتا ہوا چہرہ، شہزادوں جیسی شخصیت، مگر اس کے جسم پر گہرے زخم تھے اور کپڑے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ درگا نے لرزتی آواز میں پوچھا، آپ کو یہ چوٹیں کیسے لگیں؟ نفیسہ نے پوچھا۔ وہ بولا، مجھے لوگوں نے مارا، کوئی جگہ سلامت نہیں چھوڑی، مگر میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں دہشت تھی۔ نفیسہ نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ ستون کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس نے زخموں پر پٹی باندھنے کو کہا، مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ نفیسہ نے اپنا ایک پرانا دوپٹہ نکال کر اس کے زخم صاف کیے۔
वो चुपचाप बैठा था, जैसे अपना सब कुछ खो चुका हो। नफीसा ने खाने के लिए पूछा तो वो बोला, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो मेहरबानी होगी। नफीसा ने जल्दी से बचा खचा खाना लाकर दिया। वो खाने लगा और नफीसा सोचने लगी कि ये अजनबी आखिर कौन है। उसकी आंखों में आम इंसानों जैसी बात नहीं। वो बोला, तुम्हें आधी रात को तकलीफ दी, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, मगर मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ, वरना वो लोग मुझे मार डालते। नफीसा परेशान हो गई। ये दुश्मन इसी कबीले के हैं। वो बोला, ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर तुम मुझ पर एहसान करो। जब तक मेरे जख्म ठीक ना हो जाएं, मुझे पनाह दो और किसी को मेरे बारे में मत बताना। नफीसा ने बिना सोचे समझे कहा, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, हमारे घर कोई आता जाता नहीं। वो तरछी नजरों से उसे देखने लगा, फिर खामोशी से जमीन पर लेट गया। ठिकन से चूर था, जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। नफीसा भी इसी के ख्यालों में खो गई। सुबह जब आंख खुली तो वो जा चुका था। नफीसा हैरान थी। उसने तो कहा था कि वो 3 दिन रहेगा, फिर अचानक कहाँ चला गया। वो नाश्ता बनाने लगी, मगर दिल बेचैन था। अचानक बाप ने उसे आवाज दी, नफीसा, आंगन में ये अजीब निशान कैसे हैं? नफीसा ने नजर दौड़ाई। वाकई जमीन पर पुरासरार निशान थे, जैसे कोई भारी जिस्म रेंगता रहा हो। बाप ने संजीदगी से कहा, ये निशान मुझे नागों जैसे लग रहे हैं। लगता है यहाँ कोई नाग आया था। नफीसा का चेहरा सफेद पड़ गया, मगर फिर खुद को संभाला। आबा, आप भी बस पुरानी कहानियां ले बैठते हैं। मगर दिल में हलचल मच गई। इसी दौरान मोहल्ले की खाला शादी के कपड़े लेने आए। नफीसा काम में मसरूफ थी कि खाला ने गहरी नजर उस पर डाली और बोले, तुझे तो उम्र भर कनवारा ही रहना पड़ेगा। नफीसा हैरान हुई। खाला, ये कैसी बात कर रही हैं? खाला ने ठंडी सांस ली। तेरा बाप मजदूर है, खाने के लाले पड़े हैं, भाई अभी बच्चा है, ऐसे में तेरी शादी कौन करेगा? नफीसा ने खाला की बात को नजरअंदाज किया, मगर उसके दिल में वो सब्ज आंखों वाला अजनबी घूमने लगा, जो प्रसरार तौर पर रातों रात गायब हो गया था। आखिर वो कौन था? रात की सियाही ने सारे गांव को अपनी चादर में लपेट रखा था। मध्यम चांदनी पथरीली जमीन पर ठहरी हुई शबनम की बूंदों पर लर्ज रही थी। नीलम, जो कि एक गरीब मगर बाहमत लड़की थी, अपने बीमार वालिद और छोटे भाई की कफालत के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वो अपनी झोंपड़ी में चिराग की मध्यम रोशनी में कपड़े सीते हुए गहरी सोच में गम थी कि अचानक उसे पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, कैसी हो तुम? नीलम का हाथ साकत हो गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी और जो मंजर देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। वही नौजवान जो कुछ दिन पहले जख्मी हालत में उसके दरवाजे पर आया था, आज दोबारा सामने खड़ा था। नीलम ने घबराते हुए पूछा, तुम अंदर कैसे आए? नौजवान ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। दरवाजा खुला हुआ था। नीलम के पैरों तले जमीन खसक गई। इसने तो सुलेमान को ताकीद की थी कि दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दे। इसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और नाराजगी से कहा, तुमने कहा था कि 3 दिन ठहरूगे, फिर कहाँ चले गए थे? नौजवान हल्का सा मुस्कुराया, तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। नीलम को उसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद वो उसकी बेचैनी को भानप गया था। फिर उसने धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए चला गया था। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नीलम ने उसे गौर से देखा। तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने इस बात में सिर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मेहरबानी होगी। नीलम ने बगैर कुछ कहे मिट्टी के प्याले में दूध निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने देखा कि नौजवान दूध इस तरह पी रहा था जैसे उसे उसकी सख्त जरूरत थी। दूध खत्म करके उसने प्याला नीलम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान हो। नीलम उसकी बात पर खामोश रही, मगर उसके दिल में बेशुमार सवालात उठ रहे थे। वो धीरे से बोली, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नौजवान की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई, मगर फिर उसने नजरें चरा लीं। नहीं, मैं अपना बदला खुद लूंगा, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। नीलम उससे मजीद कुछ पूछना चाहती थी, मगर अचानक अंदर से उसके वालिद की आवाज आई, नीलम बेटी, कहाँ हो? नीलम घबरा कर उठी और अंदर की तरफ दौड़ी। उसके वालिद ने परेशानी से पूछा, बेटा, इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम बाहर बैठकर किसी से बातें कर रही थी। तुम्हारी आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी।
नीलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाहर झांक कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो नौजवान जा चुका था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, आबा, किसी से नहीं, शायद आपको वहम हुआ होगा। वालिद ने गहरी सांस ली और संजीदगी से बोले, नहीं, मैंने देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे। नफीसा का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वो सहन में आई और चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कुछ न पाया। इसके वालिद मुराद खां, जो कबीले के बुजुर्गों में शुमार होते थे, अचानक जागे और सहन में आते ही चौंक गए। मरियम, इधर आओ, देखो ये क्या है। नफीसा दौड़ी आई। जमीन पर गहरे, अजीब व गरीब निशान फैले हुए थे, जैसे कोई बड़ा सांप यहां से गुजरा हो। मुराद खां परेशान थे। ये मुमकिन नहीं, वो तो मर चुका था। उसे मैंने खुद अपनी आंखों से मरते देखा था। नफीसा के चेहरे पर उलझन थी। अबा, वो कौन था? आप किसकी बात कर रहे हैं? मुराद खां की आंखों में खौफ उतर आया। वो जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं, जो 20 साल पहले भी तबाही मचा चुका था। अगले दिन नफीसा हवेली की तरफ रवाना हुई, जहां उसे अपनी मजदूरी के पैसे लेने थे। रास्ता सुनसान था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल रख से रह गया। वही था, वही शख्स जिसे वो पहले भी देख चुकी थी। वो मुस्कुराया। तुम जहां जाओगी, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। नफीसा ने हैरानी से पूछा, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तुम्हें जल्द ही सब मालूम हो जाएगा, लेकिन शायद जब हकीकत सामने आए, मैं इस बस्ती में न रहूं। नफीसा के दिल की धड़कन तेज हो गई। खुदा न करे तुम हमेशा यहीं रहो। जब वो हवेली पहुंची तो वहां की मालकिन सख्त परेशान नजर आ रही थी। यहां सब कुछ अलट पलट हो गया है। जिस बात का डर था वही हुआ। 3 दिन से कोई कुछ नहीं खा रहा। खौफ सबके सरों पर मंडला रहा है। नफीसा का दिल किसी अनजाने खौफ से भर गया। वापस पहुंचने पर देखा कि फजल दीन चाचा उसके वालिद से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे, कुल एक बड़े स्पीरे को बुलाया जा रहा है। वो 7वें बस्ती में रहता है और 99 साल का हो चुका है। वो जहां जाता है वहीं बता देता है कि सानिब कहां छिपा है। रात को नफीसा को सहन में सरसराहट महसूस हुई। वो घबराकर बाहर आई और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो नौजवान सहमा हुआ कोने में बैठा था। तुम अंदर कैसे आए? नफीसा ने हैरानी से पूछा। दीवार फलांग कर आया हूं। अगर ऐसा ना करता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। नफीसा ने उसके जख्मों की तरफ देखा। ये कैसे हुआ? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी रूपा जैसी। नफीसा चूमिक गई। रूपा कौन थी? उसकी आंखों में दर्द उतर आया। मेरी मोहब्बत, लेकिन उसे मुझसे छीन लिया गया। नफीसा का दिल बुझ सा गया। तो वो कहां गई? नौजवान की सांसें गहरी हो गईं। काश वो जिंदा होती, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके लहजे में ऐसा दर्द था कि नफीसा का दिल बैठने लगा। अगले दिन पूरे कबीले में खबर फैल गई कि सपीरा पहुंच चुका है। पूरा कबीला इस सानब को ढूंढ रहा था, जो हवेली में घुस आया था और जिसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जख्मी होकर कहीं गायब हो गया था। रात को जब स्पीरे ने बीन बजाना शुरू की, तो अचानक झाड़ियों के पीछे एक लंबा मोटा सानब दिखाई दिया। पूरा कबीला उसके पीछे दौड़ा, मगर वो नजरों से ओझल हो गया। नफीसा के वालिद बेचैन हो गए। नफीसा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अबा, हवेली का मालिक आप पर इल्जाम क्यों लगा रहा था? मुराद खान ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं उसके कई राज जानता हूं। नफीसा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या आप एक स्पीरे थे? मुराद खान ने नजरें झुका लीं। ये 20 साल पुरानी बात है। मैं बहुत बड़ा स्पीरा था, लेकिन फिर एक हादसे के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया। कहा जाता था कि हवेली के एक तारीख गोशे में एक नाग जोड़ा बसीरा कर चुका था। वो दोनों किसी कदीम तपस्या में मसरूफ थे, दुनिया से बेनियाज, लेकिन इंसानों का दिल खौफ से लरजता था। जब हवेली के सरदार ने इन नागों को देखा तो उसके चेहरे पर सख्ती छा गई। उसने फौरन अपने खास सपीरे आबाद को बुलाया। तूने इस जोड़े को खत्म करना है, सरदार ने हुक्म दिया। आबाद ने सरदार की आंखों में झांका और धीरे से बोला, ये नाग और नागिन आम सानप नहीं है। अगर नाग मारा गया तो उसकी नागिन सदियों तक इंतकाम लेगी, और अगर नागिन हलाक हुई तो नाग तुम्हारी बस्ती को बर्बाद कर देगा। सरदार ने आबाद की बात सुनी, मगर उसकी पेशानी पर नागवारी की लकीरें उभर आईं। वो गुस्से में गरजा,
अगर तू नहीं मानेगा तो हमें खुद रास्ता निकालना होगा। उसी रात जब आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और बस्ती पर एक अनजानी दहशत का साया था, आबाद की गैर मौजूदगी में सरदार के आदमियों ने एक साजिश रचाई। हवेली के खास सिपाहियों ने नाग और नागिन की कमीन गाह पर धावा बोला। अचानक अंधेरे में बीन की आवाज गूंजी और नाग जोड़ा अपने मुस्कन से बाहर आ गया। जैसे ही वो दोनों दिखाई दिए, आदमियों ने जलती हुई मुशालों से उन पर हमला कर दिया। नागिन चीखी, उसकी सरखी माइल आंखों में गुस्से और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। वो अपने नाक के गर्द लपटी मगर भाग न सकी। चंद लम्हों बाद जमीन पर सिर्फ उसका बेजान जिस्म तड़प रहा था। नाग गुस्से से फनकारा, लेकिन जान बचाने के लिए किसी नामालूम समत फिरार हो गया। हवेली में जश्न मनाया गया। लोग खुश थे कि अब किसी का डर नहीं रहा। लेकिन आबाद जब वापस आया तो वो सब समझ गया। उसकी आंखों में खौफ था, दिल में एक अनजाना सा बोझ। उसने सरदार से कहा, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, वो लौटेगा। और फिर साल गुजर गए, लेकिन एक रात बस्ती में एक प्रासुरार सरसराहट सुनाई देने लगी। एक गैर मरी साए ने लोगों के घरों के गर्द चक्र काटना शुरू कर दिया। हवेली के दरवाजे पर अजीब वो गरीब निशानात पाए गए। बस्ती में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग खुले आसमान के नीचे सूने से डरने लगे। यही वो रात थी जब एक बूढ़ा सपेरा जो 7 कबीलों के नागों को पहचानता था, बस्ती में आया। वो सब कुछ जानता था। उसने सरदार को बताया, वो नाग जिंदा है और इसका बदला अभी बाकी है। तुम्हारी बस्ती पर एक खौफनाक आजमाइश आने वाली है। सरदार ने सपीरे को बस्ती में नाग को तलाश करने का हुक्म दिया। अगली शाम बीन की आवाज गूंजी। बस्ती के लोग सहम कर घरों में छिप गए। अचानक एक साया दरख्तों के बीच हरकत करता नजर आया। वही नाग जिसकी आंखें शौले बरसाती थीं, बस्ती के वसत में नमूदार हो चुका था। और फिर एक भयानक रात बस्ती पर टूट पड़ी। इस गांव के बाहर एक बड़ी गार थी जहां एक ताकतूर नाग जोड़ा रहता था। लोग इस जोड़े से खौफजदा थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि इन पर हाथ डालना आसान नहीं। कबायली सरदार के बेटे नूरालदीन को इस नाग जोड़े के वजूद का इल्म था। इसका बाप हमेशा कहता, ये नाग और नागन सदियों पुराने हैं। अगर इनमें से एक भी मारा गया तो दूसरा कयामत तक उसके कातिल का पीछा करेगा। लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है। कबीले के कुछ लोग ताकत और बदले की आग में जल रहे थे। उन्होंने नाग जोड़े को खत्म करने की ठान ली। नूरालदीन के बाप ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज न आए। एक रात जब चांद बादलों में छुपा था, वो लोग मुशालें लेकर गार की तरफ निकले। जैसे ही उन्होंने गार में कदम रखा, एक खौफनाक मंजर उनके सामने था। नाग और नागिन एक दूसरे के गर्द लपटे आराम कर रहे थे। अचानक शिकारियों ने उन पर हमला कर दिया। नागिन तो वहीं ढेर हो गई, लेकिन नाग जख्मी होकर अंधेरे में गायब हो गया। वक्त गुजरता गया। नूरालदीन का बाप भी दुनिया से रुखसत हो गया, मगर वो नाग जिंदा था। लोग उसे भूलने लगे, लेकिन नूरालदीन नहीं भूला था। वो अक्सर अपने घर के दरवाजे पर अजीब से निशानात देखता, जैसे कोई वहां आकर गया हो। उसकी बेटी अक्सर सवाल करती, ये निशानात कहां से आए, मगर वो हमेशा खामोश रहता। एक रात जब सब सो रहे थे, नूरालदीन ने दरवाजे के करीब एक साया देखा। वो जानता था कि ये कौन है, वही सब्ज आंखों वाला नाग। इसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी इंतकाम की आग में जल रही हों। नूरालदीन ने सरगोशी में कहा, मैं जानता था कि तू आएगा। अगली सुबह गांव में खौफ व हिरास फैल चुका था। सरदार के वही लोग जो नागिन के कत्ल में शामिल थे, पुरअसरार तौर पर मर चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, लेकिन नूरालदीन जानता था कि नाग अपना इंतकाम ले चुका है। रात के आखिरी पहर नूरालदीन की बेटी सलाई कर रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। वो मुड़ी तो देखा कि एक अजनबी नौजवान खड़ा था। उसकी आंखें सब्ज और पुरअसरार थीं। वो कहने लगा, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। मेरा इंतकाम मुकम्मल हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। बेटी ने लरजती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? पूछ लेना अपने बाप से, वो मुझे पहचानते हैं। इतने में नूरालदीन कमरे में दाखिल हुआ और चलाया, बेटी, ये इंसान नहीं, ये वही नाग है। नाग ने नूरालदीन को देखा और मुस्कुराकर बोला, नूरालदीन, तूने मेरी जान बचाने की कोशिश की थी। मैं तेरा एहसानमंद हूँ। मैं तेरा कुछ नहीं बगाड़ूंगा। बस एक चीज तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर वो रात के अंधेरे में गायब हो गया।
صبح جب نورالدین کی بیٹی نے اپنے بستر کے پاس دیکھا تو وہاں چمکتا ہوا ایک سنہری پتھر رکھا تھا۔ وہ پتھر عجیب سی روشنی دے رہا تھا، جیسے کسی جادوئی طاقت کا حامل ہو۔ یہی ناگ کا آخری تحفہ تھا۔